Good evening. Welcome to Punjab Today. We are back with another episode of Insights with Vishal Sood. Welcome, sir. ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨਦੀਪ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੇਲਡ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਨਿਪਡ ਇਨ ਇਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ਿਸ ਓਨਲੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਜਿਕ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਬ੍ਰਵੇਡੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਦੈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਮਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਦੇ ਆਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੇ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਸੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ BSF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। Now through drones and other technologies, they can bring harmful equipment in our country lot easily and a lot deeper also. So it becomes very very important ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝੇ। ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ देयर policies and central government can, and those BJP can also question their policies in Punjab, but when it comes to the security of the nation, security of Punjab, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੂ ਦਿਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਬੈਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਲ ਇਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ, right? Although he has been nominated in Rajya Sabha from Punjab, but his vision and view will always be national.
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁੱਕ ਪਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਲੋਕੀ ਜਾਣ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਪਾਣ, ਰਾਈਟ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਲੀਵੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਲ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਫਸਟ ਅਮੰਗ ਇਕੁਅਲਸ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਵਨ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲੋਇਲ ਟੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੋਜ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਆਫਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਜੇ ਡਿਊ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਨੂੜ ਕਿਸੇ ਜੇਈ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 41-42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁਜਰਿਮ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਜੇਈ ਦੇ ਘਰ 42 ਲੱਖ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਫਿਲਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਮਾਰਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਈ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਡਾਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਜੇਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ EMPLOYE, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਈ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੇਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜੇਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ 42 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਸਟੇਟ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋ ਲਾਲਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਆਫ ਐਰਰਸ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਚ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अंदर एक मॉरल बैंकरप्सी आ गई है, वो चीज़ें दिखाती भी है। सर, नेशनल इश्यूज डिस्कस करते हैं। अमरनाथ यात्रा जो है उस पर सिक्योरिटी है जो रिव्यू की है अमित शाह जी ने। बिल्कुल, देखो अमरनाथ यात्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज जो हमारी देश के एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू कम्युनिटी लेती है और भी कम्युनिटी से लोग उसमें जाते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट जो पिछले 1-2 महीने में जम्मू कश्मीर में हुआ है, राइट, जो 1-2 आतंकी हमले या थोड़ी सी जो उसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है, उस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को बड़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और आज की डेट में जिस तरह की टेक्नोलॉजी RFID बेस्ड, हर किसी को ID कार्ड मिलेगा ताकि कोई बाहर का बंदा उस यात्रा में ना घुस पाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जा रहे हैं। और देखो आज की डेट में ये फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म की कमर तोड़ी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज आर टेकिंग वेरी एक्टिव एक्शन। और एक बार तो जो देश के दुश्मन है, एक बार वो कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो एक बार तो वो रेजिस्टेंस देंगे, दे विल ट्राई, वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंसर्जेंसी क्रिएट करते रहें। और हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी शक्ति के साथ डटी हुई हैं। अब पिछले 2-3 सालों में क्योंकि धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद कोविड की सिचुएशन थी, तो 2-3 सालों से ये पिलग्रिमेज नहीं लिया गया था। तो इस बार पूरी सिक्योरिटी के साथ उम्मीद ये की जा रही है कि रफली 8 से 9 लाख लोग इस यात्रा में शामिल होंगे और सिक्योरिटी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी जो लास्ट जो इंसिडेंस हुआ था, जो वैष्णो देवी यात्रा से कुछ बस में कुछ यात्रियों की जान ले ली गई, तो इन सब चीज़ों का इस वक्त गवर्नमेंट को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने जम्मू कश्मीर का जो हम सपना देख रहे हैं कि वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन हमारे साथ नेशनली इंटीग्रेट हों, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आए, जो कई सालों से उनको जो प्रोग्रेसिव चीज़ें इंडिया में हुई हैं, जिससे जम्मू कश्मीर 370 के कारण कटा हुआ था। 370 जो एक जोड़ने वाला ब्रिज बनना था टेम्परेरी, वो तोड़ने वाला ब्रिज बन गया था। उसको हटाने के बाद जो नए नए इनिशिएटिव्स वहाँ पे लाए जा रहे हैं, और अगर उसको लाना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शांति। देखो किसी भी देश में अगर तरक्की रोकनी है तो सबसे पहले वहाँ की सुख शांति भंग की जाती है, वहाँ पे इंसर्जेंसी क्रिएट की जाती है। यही पाकिस्तान हमारे साथ करना चाह रहा है। रदर दैन फोकसिंग अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करने की बजाय उन्होंने ये पॉलिसी बना ली कि भाई हमें इंडिया को वी हैव टू स्लाइस देम विद 100 कट्स। जहाँ जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी, जब हम पंजाब की भी डिस्कशन करते हैं, जम्मू कश्मीर की, इन्वेस्टमेंट्स तभी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगी अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है। जब किसी की जान को खतरा है तो ये सब कुछ कैसे आएगा? इंडियन गवर्नमेंट ये बात को समझती है, इसीलिए दे आर इंश्योरिंग कि जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो बेसिकली टेररिज्म है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। और ऐसे जो हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा में अगर कोई भी डिसरप्शन होएगी तो इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगी। तो जो आतंकवादी संगठन है वो कोशिश करते हैं कि ऐसे कुछ मेजर इवेंट के आसपास कुछ कार्रवाई की जाए ताकि वो पूरी दुनिया में उसका मैसेज जा पाए। और वो जो उनका पर्पस है, जो उनका एक बेसिक पर्पस यही है कि यहाँ पे अशांति फैलाना, राइट, यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट, तनाव का माहौल क्रिएट करना, वो सारा फिर उनके लिए काम आसान हो जाता है। तो गवर्नमेंट जितनी प्रिकॉशन ले सकती है लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आपको पूरी यात्रा ड्रोन के थ्रू कवर होनी चाहिए, आपको आसपास की विसिनिटी कवर करनी चाहिए। और अगर ये यात्रा बिना किसी इंसिडेंट के अगर भारत करवा पाता है, भारत की सरकार करवा पाती है, तो ये भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और ये टेररिज्म की जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी हार होगी। बिल्कुल सर, इन्फ्लेशन जो बढ़ती जा रही है उसमें एक डाटा आया कि 9 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी है। देखो, इन्फ्लेशन इस वक्त ग्लोबल प्रॉब्लम है। अगर आप USA की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूरोप की बात करें, ये जियोपॉलिटिकली जो टेंशन्स दुनिया में चल रही हैं, यूक्रेन वॉर से अब जो नेटो की एक्सपेंशन की बातें चल रही हैं, उसके कारण, और जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया चाइना और इंडिया चाइना US के बीच में जो तनाव है ताइवान के कारण, उन सब चीज़ों के कारण इन्फ्लेशन इज़ एट ऑल टाइम हाई। सप्लाई चेन्स रुकी पड़ी हैं। इवन मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे दूं, चाइना से जो एक शिप या कंटेनर जो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले एक्स अमाउंट में आता था, आज उसका फ्रीट 5x है।
जब सामान को लाने ले जाने का कॉस्ट, फिर चिप्स की जो कमी हो गई है पूरी दुनिया में, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अब यूक्रेन रशिया जैसी जो ग्रेन बास्केट्स थी पूरी दुनिया की, वहाँ पे वॉर के कारण इस बार कोई फसल नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों ने ओवरऑल इन्फ्लेशन को बहुत बढ़ा दिया। ऊपर से ऑयल प्राइसेस तो ऑब्वियस है बड़े पड़े हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब इस सिचुएशन का देखो, वी हैव टू वेट इट आउट। इसीलिए देश को फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है। वी हैव दोज फॉरेन रिजर्व्स, वी शुड हैव डेवलप्ड दोज कैपेबिलिटीज। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अब हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी वेस्टेजेस कम करने की ज़रूरत है। जो मंडियों में, स्टोरेज में जो हमारा अनाज वेस्ट होता है, एक एक दाने की कीमत आज समझने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमारी फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी, अब खैर डिसीजन अब लिया है, चिप मैन्युफैक्चरिंग करने में एक टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप चिप खुद बना रहे हैं तो आप आज की डेट में, फ्यूचर में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में चिप्स लगेंगे ही लगेंगे, चाहे वो कार हो, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, आपके कंप्यूटर्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, तो अगर आपकी चिप की प्रोडक्शन विद इन योर कंट्री इज हैपनिंग, तो आप काफ़ी हद तक अपनी आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं। और इवन हथियारों में, हर चीज़ में चिप्स लगने हैं। तो इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, जैसे ताइवान बना हुआ है। और फ्यूचर में जो नई टेक्नोलॉजीज आए उसकी इनोवेशन पे हम काम करें। खेती में इनोवेशन हो, एनर्जी में इनोवेशन हो, सोलर एनर्जी में इनोवेशन हो। यही चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को, अभी शॉर्ट टर्म में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से आप कंट्रोल कर सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी से मेरा मतलब है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, है ना। तो जब पर ये, इससे क्या होता है कि फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। जो पिछले 2-3 सालों में जो पूरी दुनिया में हुआ है, उसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी प्रेशर है। तो एक बैलेंस बना के चलना, शॉर्ट टर्म डिसीजन आपको इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट्स है सप्लाई साइड से, वही इसका सोल्यूशन है इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। सर, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात हमेशा से होती आई है पूरी दुनिया में। जो बाइडेन ने इसकी खिलाफत की है। देखो, जो बाइडेन इसकी खिलाफत कर रहे हैं, सबसे बड़े व्हाइट सुपरमेसिस्ट तो वही हैं। वो चाहते हैं कि हर जगह पे यूएसए की पॉलिसी या यूरोप, जो उनकी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसी का हर जगह पे राज हो और उसी तरीके से पूरी दुनिया चले। और जिस तरह से वो कहते हैं डेमोक्रेसी चलाई जाए, उसी तरीके से डेमोक्रेसी चलाई जाए। तो सबसे पहले तो उनकी कंट्री का बिहेवियर ही सुपरमेसिस्ट है, हेजिमोनिक है, राइट। तो वो किसी को क्या नसीहत दे सकते हैं। अब इसको डीपली सोचने की जरूरत है। ये जो व्हाइट सुपरमेसी की बात है, इसके दो पहलू हैं। अब सबसे पहली बात कि सबको इक्वालिटी का देना। अब आप अगर एक 18 साल का युवक अगर ये सोच रहा है कि व्हाइट लोगों के साथ सुपरमेसी की बजाय वो ये सोच रहा है कि अगर आज की डेट में व्हाइट लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, दूसरे वर्गों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि जो आपकी पॉलिसीज आए वो मेरिटोक्रेसी बेस्ड हो। बंदा किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रंग से हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ताकि जो वाइट पॉपुलेशन भी है वहां की, उनके अंदर भी इस तरह के विचारधाराएं ना पैदा हों, कि उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उनको। क्योंकि आज से 200-300 साल पहले उनके बुजुर्गों ने जो किया है या उनके पूर्वजों ने जो किया है, उसके कारण आज एक एवरेज वाइट जो गरीब घर से है उसको भी ये ना लगे कि भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वाइट सुपरमेसी ने पिछले 300-400 सालों में जो फैक्ट ये भी है, क्योंकि एक जो वाइट प्रिविलेज जिसको बोला जाता है, या एक वाइट एक ऐसा माइंडसेट जिसके कारण वो कहते हैं ना कि बर्डन ऑफ अ वाइट मैन, कि वाइट मैन आर सुपीरियर देन अदर्स। एक जो रेसिस्ट माइंडसेट है, हम कल जर्मनी की भी बात कर रहे थे, इट वाज नॉट अ नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट वाज अ रेशियल सुपरमेसी मूवमेंट ऑफ कि आर्यंस आर बेटर देन एनी अदर रेस। सिमिलरली ये माइंडसेट पिछले 200-300 सालों से, या इनफैक्ट 400 सालों से यूरोप ने पूरी दुनिया में फैलाया है, दैट वाइट रेस इज बेटर देन अदर्स, दे हैव द नॉलेज, दे हैव द एनलाइटनमेंट, राइट, एंड थ्रू क्रिश्चियनिटी दे आर गोइंग टू स्प्रेड द मैसेज, राइट। तो ये कि उनके पास सोल है, दूसरे के पास सोल नहीं है। पूरी दुनिया में आज अगर ब्लैक कम्युनिटी यूएसए में है, दे वर बॉट इन एज स्लेव्स। इट इज हाई टाइम कि उनके राइट्स दिए जाए, राइट। इट इज हाई टाइम कि उनको चाहे जो भी एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी के, चाहे जॉब्स हैं, और फिर जो वहां की पुलिस है, लॉट ऑफ कॉप्स ओवर देयर दे मिसट्रीट दी ब्लैक पीपल इन, और हिस्पैनिक और अदर कम्युनिटीज।
विद इन द अमेरिकन सोसाइटी। तो ये जो उनकी सोसाइटी में जो रेसिज्म भरी पड़ी है, ये आज की नहीं है, ये पिछले 400-500 सालों का जो माइंडसेट है, जो यूरोपियन हेजेमोनिक माइंडसेट है, इंपीरियलिस्टिक या कॉलोनिस्ट माइंडसेट है, ये उसका रिजल्ट है कि वी आर द ओनली पीपल हु नो हाउ टू बिहेव, वी आर द ओनली पीपल हु हैव नॉलेज। हमारा ही सिर्फ साइंटिफिक और मॉडर्न माइंडसेट है, बाकी सब लोग तो हमसे नीचे हैं। ये माइंडसेट उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने ही फैलाया है, बिल्कुल, और अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। आज वो दूसरे देशों को नसीहत दे रहे हैं, पर अभी भी उनके जो एक्शन है वो वही है कि आप हमारे हिसाब से चलोगे, वी नो इट बेटर, दिस शुड बी द वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका हैज टू प्रोटेक्ट एवरीवन। जब आप एक तरफ ये मैसेज देते हो और दूसरी तरफ ये बातें करते हो, तो ये मैसेज कोई कैसे लेगा? थर्ड पार्ट इज गन कंट्रोल। हथियारों के बेस पे आपकी इकोनॉमी चल रही है। आप कह रहे हो कि मेरे देश का हर इंसान हथियार रख सकता है, सेमी ऑटोमेटिक वेपन रख सकता है। आप इसको बंद करो। जब हथियार इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, तो ऐसे शूट आउट होंगे कैसे? आज एक 18 साल का बच्चा या एक कोई भी बंदा कहीं से भी जाके हथियार खरीद के शूटिंग कर सकता है। आप अभी भी पैसा कमाना चाहते हो और दूसरी तरफ ये बातें करते हो। मेरे को लगता है जो बाइडेन की ये बातें खोखली हैं, ये सिर्फ एक लिप सर्विस है। आज उन्होंने एक और दुनिया को दिखाने के लिए कर दिया है कि उन्होंने व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, मीडिया स्पोक्स पर्सन है, शी इज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम ब्लैक एंड लेस्बियन कम्युनिटी। तो ये सारी दिखावे की चीजें हैं। आप हर रोल के लिए बेस्ट बंदा रखो, अगर वो बेस्ट हैं तो आप उनको रखो। इससे भी समाज में असमंजस्य आता है। किसी की क्वालिफिकेशन ये नहीं हो सकती कि समवन इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कलर, रेस या उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस ही हैं, ये किसी की क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। आप जिस काम के लिए हो, आपकी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। तो इसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका ये है कि मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, राइट? और प्रैक्टिकली लोगों के अंदर आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट हो। अगर आपका मैसेज अभी भी यही है कि इट इज व्हाइट मैन्स बर्डन, जो आप पूरी दुनिया में दिखा रहे हो, तो आपके बच्चे तो फिर ये सोचेंगे दे आर सुपीरियर। बिल्कुल सर, नाटो ने भी अब और एक्शंस लेने शुरू किए हैं। स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। देखो, ये एक इस वक्त दुनिया का बहुत ही डेंजरस फेज चल रहा है। नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस, और आप क्या कर रहे हो कि एक मेजर पावर जिसने पहले ही प्रूव कर दिया है कि वी आर विलिंग टू अटैक। यूक्रेन के साथ कैसी लड़ाई हुई? क्योंकि वो यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाह रहा था, और उस केस में हम रशिया के भी जो फियर्स हैं उसको भी समझना पड़ेगा। आज फिनलैंड और स्वीडन अगर नेटो की एप्लीकेशन डालते हैं, और उन्होंने खैर डाल भी दी है, उनका 200 सालों की उनकी नॉन अलायंस थी। दे वर बेसिकली न्यूट्रल टू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि 200 साल बाद हम फिर उस सिचुएशन में हैं कि जब स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज जो पीसफुल कंट्रीज थी, उनको कोई ना कोई साइड चूज करनी पड़ रही है, राइट? उनके अंदर दोनों साइड से प्रेशर बनाया जा रहा है। नेटो की साइड से भी उनको डराया जा रहा है, और रशिया भी उनको धमकी दे रहा है। अब वो तो दो बड़ी पावर्स के बीच में फंस गए हैं। सो बेसिकली अगेन वो जो सुपरमेसी की बात है, अगेन यू विल सी दैट वाइट सुपरमेसी कम्स इनटू द पिक्चर, दैट यू आइदर चूज आवर साइड और यू आर इन ट्रबल। यही मैसेज वो पूरी दुनिया में कई सालों से देते आए हैं। टर्की ने हालांकि उनकी इस एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है, और होपफुली अगर मतलब आई होप गुड सेंस प्रिवेल इन रशिया ऑल्सो, इन पुतिन्स माइंड ऑल्सो, कि एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इट शुड बी वेटेड आउट, डिस्कशन शुरू हो जानी चाहिए, रेदर देन टेकिंग अ डिसीजन। ट्राई पार्टी डिस्कशन हो। क्यों ना रशिया को भी फिनलैंड और स्वीडन इसका डिस्कशन पार्ट है कि आप हमें क्या एश्योरेंस देते हो। क्योंकि अगर ये लड़ाई और फैल गई, और लड़ाई के अंदर एक अपना दिमाग होता है, एक अपनी जान होती है, वो अपने आप को बढ़ाना चाहती है, तो एक कल को एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए। इसलिए इस चीज को बहुत ही केयरफुली और एक बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ हैंडल करने की जरूरत है। और इसको अभी मेरे को लगता है ठंडे बस्ते में डाल देना विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। दे आर कंसिडरिंग इट, दे शुड कंसिडर इट, पर वो अभी एप्लीकेशन ना डालें। और वो रशिया से भी एश्योरेंसेस लें कि हमारी एनर्जी की जो नीड्स हैं आप उसको नहीं रोकोगे, राइट? हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ों की कमिटमेंट्स लें। और यूएस भी नेटो की एक्सपेंशन की बजाय यूक्रेन के अंदर शांति बहाली पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अब तो उस लड़ाई को बंद होने की बात ही कोई नहीं कर रहा। यूक्रेन और रशिया को लड़ाई की पहले हम हर रोज बात करते थे, ये कब तक बंद हो जाएगी, कब लोग इस मुसीबत से निकलेंगे, पर अब तो इसको बंद करने की कोई बात ही नहीं कर रहा है जी। अब तो ऐसा लग रहा है कि इट विल कैरी ऑन, और वहां पे एक
सोल्जर्स मर रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं। पॉलिटिशियंस ने तो ठीक है जी, हम अब इसको एक नई शेप दे दी है और वो उसमें से भी प्रॉफिट कमाएंगे जी। राइट। इसमें हथियारों की कंपनियों का बिजनेस होगा। बट प्रैक्टिकली अब आप देखेंगे कन्वर्सेशंस जितने भी मेन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लड़ाई को बंद करने की अब बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल। कोई नहीं बात कर रहा है कि भाई रशिया के साथ बात की जाए। कोई पहले शुरू में बात हुई थी जी। अब उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। अब ये मान लिया गया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एक हल्के आंच पे रख के चलाते रहना है। बिल्कुल। और इससे शायद कुछ लोगों के बेनिफिट हो रहे हैं। तो ये वाइट सुपरमेसी का, या जो इसको वाइट सुपरमेसी की बजाय मैं इसको यूरोपियन जो इंपीरियलिज्म है जी। राइट, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म आज की डेट में जो बन गई है, ये उसका रिजल्ट है कि आप हल्के आंच पे पूरी दुनिया चल रही है। शुक्रिया सर। इसी तरह की मीनिंगफुल डिस्कशंस के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे।